My dear student of standard 10, and welcome to you once again. And today I have brought chapter number 9 for you, that is forest and wildlife resources. This topic we already covered in our standard 9, but this is the advanced version of it. And basically, as you can see, part 1 of 3, that means I am going to cover it in 3 parts. Okay, if I told you, then we are going in this session, we are going for some introduction part. Then we are going to classify the forest, okay, and types of forest are there in our country. We are often going to discuss the topic deforestation and how the deforestation impact on our country and all that, and how we can conserve our forest. Okay, this is the going to be the part of in this session. And in my next section I will going to discuss the wildlife diversity. Okay, wildlife, there are certain wild animals those who are on the verge of extinction. Okay, so why are the wildlife are get destroyed in our country, and how we are going to conserve it. Okay, and in the third part we are going to discuss different wildlife schemes that had launched by our government, like Tiger Project and all that, and of course national park, bioreserve and sanctuary, that will be going to be in the third session. So without any further delay, let's begin. And okay, let's start. hmm. So in this chapter I'm going to through read line by line, so that you can get perfect idea. So the existence, progress and development of man is dependent on resources. So resources we already studied in chapter number 8. And see, our progress is completely depend on the resources, there is no doubt in that. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times, wherein the forest are considered to be important resources. Okay, so हम लोग पहले से उसका यूज़ करते आ रहे हैं, एंड आज भी हम लोग देखें तो फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जहाँ से हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं. अ जनरल मीटिंग A general meaning of forest is accumulated of trees, shrubs and heaps of grass. ओके, तो हम लोग किसी भी चीज़ को फॉरेस्ट कब कहेंगे? जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज, स्क्रब्स और ग्रास हो, ठीक है, उसको हम लोग फॉरेस्ट कहेंगे. In natural vegetation, that only that vegetation is included which can be raised naturally without a help of man. तो नेचुरल वेजिटेशन किसको कहा जाएगा? जो वेजिटेशन बिना किसी इंसान की हेल्प के ग्रो किया गया हो. ओके, एंड इस वेजिटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. ओके, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्जिन वेजिटेशन. तो सिंपल आपको ये याद रखना है, जो वेजिटेशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस ग्रो हुई है, डेट इज कॉल्ड द वर्जिन vegetation. Now such vegetation in India are available only in Himalaya, Sundarban and remote areas of Thar desert. Okay, so ऐसी वेजिटेशन तो आपको नॉर्मली बहुत ही कम देखने को मिलेगी ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ऑल दैट. एंड let us go to the next topic, that is classification of forest. Forest classification is made according to the different criteria. You have studied the classification of forest on the basis of the climate in standard 9. We do all that. Okay, we does it, and where we will know about 3 types of forest on the basis of the administration, ownership and management. Okay, so our first topic, types of forest according to the administration. If in your exam the question is asked, differentiate the forest, or what are the types of forest according to the administration, so you are supposed to present this. Number 1 is reserve forest, number 2 you can see protected forest, and number 3 unclassified forest. So basically these are the 3 types of forest are found in our country according to the administration point of view. So now reserve forest, protected forest and classified, they are only given 1.5 line, that means you need to only understand. Okay, now in the first one they are saying that such forests are under the control of the government directly. So who is govern the reserve forest? Basically the government only.
हियर देयर इज a restriction on lumbering. लंबरिंग मीन्स लकड़ा काटना वो सब होता है. एंड कलेक्शन ऑफ वुड्स एंड पेस्चरिंग. पेस्चरिंग यानी घास चरना, जो एनिमल जो हमारे फार्मर्स भाई अपने एनिमल्स को गाय भैंस वगैरह बकरियों को घास चरवाने ले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. सो रिजर्व फॉरेस्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? वेल, इट इज़ कम्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल डायरेक्टली. एंड यहाँ पे आप लोग लकड़ियाँ नहीं काट सकते. एंड यू आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट एनी काइंड ऑफ वुड. एंड इवन आपका एनिमल्स का ग्रेजिंग भी यहाँ पर पेस्चरिंग भी अलाउड नहीं है. सो रिमेंबर, ये आपको रिजर्व फॉरेस्ट में शो करना है. देन अब आप शो करोगे, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, डेट इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. दिस फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. Local people are permitted to collect wood and to graze their animal without causing any harm to the trees. अब थोड़ी गवर्नमेंट अब यहाँ पे लिबरल हो जाती है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोकल लोगों का आना अलाउड है. उनको लकड़ियाँ भी कलेक्ट कर सकते हैं, इवन वो अपने एनिमल्स का ग्रेजिंग भी करवा सकते हैं. बट हाँ, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं कि उनको एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना है. उसके लिए गवर्नमेंट उनके प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है एंड उनको समझाया जाता है. सो यहाँ पे थोड़ा लिबरल अप्रोच हमको देखने को मिलता है. नाउ अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. अब ये क्या होता है? दिस फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड, यानी इसको भी इस फॉरेस्ट को अभी तक ढूंढा ही नहीं जा सका है. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग और एनिमल ग्रेजिंग. ये मतलब जंगलों के अंदर बहुत घने जंगल होते हैं ना, तो इसको हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे. एंड यूजुअली यहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता है. Now we are going towards the next topic, that is classification of forest according to the ownership, administration and management. Okay, so we are going for next topic, that is classification of forest but according to the ownership and administration and management. Okay, इस टॉपिक से हम लोग जाएंगे. The forest of India are classified into 3 types on the basis of the ownership, administration and management aspect. सो पहला आता है स्टेट फॉरेस्ट. ओके, सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट. मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी. सो इंडिया में ज़्यादातर जो फॉरेस्ट है वो इस कैटेगरी में पाए जाते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा. देयर आफ्टर कम्स द कम्युनल और यू कैन से कम्युनिटी फॉरेस्ट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर सच फार्मर्स. तो यहाँ पे थोड़ा बेसिकली क्या होता है कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं मोटे मोटे तौर पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रही है. फिर उसके नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट आता है. आपके डिस्ट्रिक्ट में या तो गाँव होगा, गाँव में रहते हैं तो ठीक है, विलेज पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी. अगर आप शहरों में रहते हो, पॉपुलेशन 5 लाख से कम है तो म्यूनसिपालिटी होगा, मोर देन 5 लाख है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी हो सकती है. तो इनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है इस टाइप के फॉरेस्टों पर. आई होप आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा. चलो अभी लास्ट वाले पे आते हैं, जिसको कहेंगे हम लोग प्राइवेट फॉरेस्ट. नाउ एज यू कैन सी, हम लोगों को पता है कि प्राइवेट कंपनियां क्या होती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या होती हैं. तो ये भी कुछ उस टाइप का ही है. सच अ फॉरेस्ट आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी किसी एक इंसान के द्वारा या कोई फर्म के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है. सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन उड़ीसा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. सो इन स्टेटों में आपको इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर इन हैपोजेट कंडीशन एंड सम आर इन टोटली बैरन. तो कुछ अच्छी कंडीशन में और कुछ बहुत ही ख़राब कंडीशन में. ओके, कई बार तो हम लोगों ने देखा है कि लोग अपने खुद के जंगल ग्रो करते हैं. से फॉर एग्जांपल आई एम वॉचिंग डिस्कवरी टाइप्स ऑफ शोज एंड वहाँ पे मैंने देखा है कि जो टोमेटो केचप बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं वो खुद की ज़मीन परचेज कर लेती है एंड खुद के ही मतलब फॉरेस्ट डेवलप करती है, जहाँ पे वो लोग बहुत सारे टोमेटोज ग्रो करते हैं एंड ऑल दैट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफॉरेस्टेशन. एग्जैक्टली बिलो माई इमेज यू कैन सी द टर्म डिफॉरेस्टेशन. एंड ये लेकिन ये डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? सो वेरी फर्स्ट लाइन यू विल गेट द आंसर. डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. जंगलों का कटना यानी डिफॉरेस्टेशन होता है, जहाँ पे जंगल बर्बाद किए जाते हैं. दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन बट इट इज़ वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम. ये सिर्फ हमारी और आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये लगभग दुनिया के हर पार्ट में देखी जाती है. और ये एक तरह से हम लोग कहेंगे तो ग्लोबल प्रॉब्लम ही है, क्योंकि पूरी दुनिया आज इसको फेस कर रही है. वेल, मैं तो एक ही रीज़न मानता हूँ, पॉपुलेशन.
हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि हमको रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, एंड तभी हम लोग फॉरेस्टों को डैमेज कर पा रहे हैं। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं डेट वी आर गोइंग टू सी। इट कैन बी सेड दैट इट इज़ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन। जितना जितना इंसान प्रोग्रेस कर रहा है उतना उतना वो जंगलों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली। देखिए ट्रीज ऐसा नहीं है कि हम लोग ह्यूमन ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बट वो नेचुरली डिस्ट्रॉय होते हैं। कई बार जंगलों में आग लग जाती है, कई बार फॉरेस्ट फायर होती है। ओके, फॉरेस्ट फायर जंगलों में एक ही चीज़ है, बट कई बार साइक्लोन आते हैं। ओके, कई बार फ्लड आते हैं, तो सॉइल इरोजन के कारण भी पेड़ गिर जाते हैं। सो ये तो नेचुरल तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता ही है, ट्री भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेड अमाउंट है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी उसको काट रहा है। हाउएवर इट इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस। लेकिन प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है, जब से इंसान की दखल अंदाजी जंगलों में बढ़ने लगी है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन का हमारे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होता है। द इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड। ओके, इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, कोई एक दो इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ क्या होती है, द क्वालिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमोसफियर। तो जैसे जैसे पेड़ कम होंगे तो एटमोसफियर में ऑक्सीजन की कमी होगी, एंड जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट एटमोसफियर में इंक्रीज होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम मोर इंटेंस। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है कि ये हमारे जितने भी जो गैसेज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, तो इनकी अमाउंट बढ़ने लग जाती है और एनवायरनमेंट गेट्स वार्मर, एंड वो ज़्यादा गर्म होता है। विद अ रिमूव्ड फॉरेस्ट कवर्ड एंड द सॉइल इरोडेड, द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीजेस। ओके, इसकी प्रॉब्लम और भी मल्टीप्लाइड कब हो जाती है, जब सॉइल इरोड होती है, जब सॉइल का इरोजन होता है, एंड ड्यू टू द सॉइल इरोजन और मतलब फर्टिलिटी ज़मीन की कम होती है, एंड ये जंगल धीरे धीरे और ख़त्म होने लगते हैं। इन द ऑफ, आई थिंक यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, पेनिनसुलर इंडिया द फॉरेस्ट एरिया हैज़ डिक्रीज लार्जली ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। सो ये चीज़ें हमने अभी तक कहाँ कहाँ पर देखी हैं, स्पेशली इन द पेनिनसुला पार्ट, जो इंडिया का सेंटर और द सदर्न पार्ट में गिना जाता है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लॉस्ट देयर एबोट्स। एबोट्स का मतलब देयर होम्स। तो जब भी जंगल करते हैं तो वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एंड उनके घर चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल अप्रोचेस अर्बन, आई थिंक मैं गलत स्लाइड में चला गया, हाँ, अर्बन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ फूड। तो जंगल कटने की वजह से अब नॉर्मल सी बात है कि एनिमल्स को अपना खाना मिलने वाला नहीं है। अब ये लोग खाने की तलाश में शहरों की तरफ आ जाते हैं, एंड कई बार वो गलती से अर्बन एरियाज यानी सिटी शहरों की बस्तियों के अंदर एंटर कर जाते हैं। मोर इंस्टेंसेस are recorded for carnivorous animal killing the domestic animal of those shepherds who live near the forest। तो जंगलों के आसपास में जो गाँव में जो शेफर्ड्स लोग रहते हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, स्पेशली शीप्स हो गए, गॉट्स हो गए, तो वाइल्ड एनिमल्स आसपास के एरिया में अटैक कर दिया करते हैं। नॉर्मली ऐसा देखने को आया है। नाउ आई थिंक 2 more slide, ओके डन। सी, now we are going to discuss the remedies of forest conservation. Let's get started. Research should be carried out to find the option of wood. हमको ऐसा रिसर्च करना चाहिए कि हम लोग वुड का कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ सकें। वेल, दिस विल रिड्यूस द यूज ऑफ वुड एंड इट विल सेव द फॉरेस्ट। अगर हम लोग लकड़ियों पर निर्भरता अपनी कम कर दें और वुड का रिप्लेसमेंट ढूंढ लें, तो आई थिंक हम लोग बहुत सारे लकड़ियों को कटने से बचा सकते हैं। वेल, आई अप्रिशिएट कि जो हमारी जो चेयर्स हैं, कुर्सियाँ हैं, वो ऑफकोर्स प्लास्टिक से बनती हैं, तभी कोई भी हार्डली यू विल फाइंड द चेयर विच इज़ मेड अप ऑफ वुड। वुड से बनने वाली चेयर्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, एंड वेल अच्छा है कि एटलीस्ट चेयर के लिए हम लोग लकड़ियाँ नहीं काटेंगे। वेर एवर द ट्रीज आर टू बी कट इनएविटेबली for the development work and for necessity, new tree of the same species should be grown. Okay, देखिए जंगल का कटना जो ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए वो तो चलो ठीक है, बट अगर हम लोग एक पेड़ काट रहे हैं तो देन वी शुड प्लांट ट्रीज ऑल्सो। उसके एक्सचेंज में अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो एक हमको दिमाग में एक कैलकुलेशन लेके चलना चाहिए कि हमको 3 पेड़ और लगाने हैं, और सिर्फ लगा के फ्री हो जाना ज़रूरी नहीं है।
उसको मॉनिटरिंग करना, उसको कंटिन्यूसली पानी देते रहना, एटलीस्ट उसको मेच्योर करना। इनिशियल स्टेज में तो उसको मतलब प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार एनिमल्स आके उसको हार्म कर जाते हैं। Whenever the trees are to be cut inevitably for the development work, the necessary new tree of the same species should be grown. There should be a ban for cutting the tree which are not fully grown. जो पेड़ और पौधे पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए उनको काटना तो बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे फिशरमैन्स होते हैं, यूजुअली उनको पता है कि हमको समुद्र में से मछलियाँ मिलती रहती हैं, बट वो एक टाइम होता है जब वो एक आध महीने के लिए विजिट नहीं करते हैं। रीज़न, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका रिप्रोडक्शन का टाइम है, और फिश रिप्रोड्यूस होंगी तो हमको आगे फ्यूचर में फ़िश मिलती रहेगी। सो अगर हम लोग थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करके चलें तो हम लोग एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। Those industry which receive their raw material from the forest should be compelled for the afforestation for the future needs, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि उनको अगर वो एक पेड़ काट रहे हैं तो उनको 3 पेड़ और लगाने चाहिए ना। अफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों का बढ़ना। ओके, तो जितना वो अफोरेस्टेशन करेंगे उनकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती रहेंगी, अदरवाइज क्या होगा कि फ्यूचर विल बी इन डेंजर। अंडर द नेम ऑफ इको टूरिज्म the forest cover should not be damaged and should be strictly controlled. कई बार क्या होता है कि टूरिज़्म जो बढ़ाते हैं उसकी वजह से फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान किया जाता है, सो तो अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, इसी तरह से हम लोग अपने जंगलों को बचा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज अमोंग द लोकल पीपल। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि जंगलों के आसपास में जो रहने वाले जो गाँव के लोग होते हैं उनके अंदर तो स्पेशली एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, ताकि उनको मतलब समझाया जाए कि आपको इस तरह से जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ओके, समझ सकते हैं उनकी भी कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, लेकिन उसका भी हम लोग रिप्लेसमेंट ढूंढ लें तो ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। दे शुड एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सी, अगर ये चीज़ जैसे मैं आपको ये रिलेशन समझा रहा हूँ तो इसकी बात नॉर्मल सी बात है। आप जितने लोगों ने भी मेरा लेक्चर देखा है, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो आगे फ्यूचर में कभी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे, ऐसा मैं मतलब मानता हूँ। ओके, और जितना अगर हम लोग ये जो आने वाली हमारी जनरेशन है जो स्कूलों में पढ़ रही है, कॉलेजेस में पढ़ रही है, अगर हम उनको भी पहले से समझा दें तो आगे जाके वो सब ऐसे काम नहीं करेंगे। ओके, जो एक हद तक सही भी है, एंड इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रहेगा और हमको भी हेल्दी एयर मिलती रहेगी। सोशल फॉरेस्ट्री एंड द एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप इंटेंसिवली बाय टेकिंग द प्लान स्टेप फॉर द नेसेसिटी ऑफ फॉडर एंड फायरवुड। सोशल फॉरेस्ट्री यानी हमको सामाजिक तौर पे मिलके जंगलों को ग्रो करना चाहिए। हम लोगों को ऐसा एक दिन रखना चाहिए जहाँ पे सारे गांव के लोग मिलके पेड़ पौधे उगा रहे हैं एंड उसको भी पूरा साल प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी हमारे फॉरेस्ट में से हमको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी मिल जाए। अगर हम लोग थोड़ा एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करके चलेंगे, ओके, प्लान स्टेप तरीके, तो हम लोग अपने लकड़ियों की प्लस अपने जो घास चारे की जो ज़रूरत है वो भी हम लोग फुलफिल करते रहेंगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक मेरे इमेज के नीचे वाले पॉइंट पे आ जाना, ठीक है, इन प्लेस वाले। नाउ in place of firewood, alternative sources like solar energy, natural gas, etc. should be implemented. सी, जंगलों में से यूजुअली हम लोग लकड़ियाँ लेते हैं जो हम लोग अपने घरों में चूल्हे जलाते हैं, जिसमें से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसकी जगह अगर हम लोग सोलर एनर्जी और नेचुरल गैस अगर यूज़ करें तो हमारी जो डिपेंडेंसी है लकड़ियों पे वो कम हो जाएगी एंड फिर हम लोग इतनी लकड़ियाँ नहीं काटेंगे। सो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हमको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। आपको सोलर एनर्जी सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है जो इंडिया में तो बहुत ही एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज स्पेयरिंगली। बराबर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का हमको अगर यूज़ भी करना पड़े तो बहुत ध्यान से सोच समझ के उसका यूज़ करना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस ऑफ द ट्री ग्रोथ फास्टर एंड हेल्थियर, इन्फेस्टेड ट्री शुड बी रिमूव। सी, कुछ ट्रीज जो आसपास में जो छोटे मोटे ट्री ग्रो होते हैं उसको हटा देना चाहिए ताकि वो नेचुरल जो ट्री ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट ना करे।
फॉरेस्ट फायर कॉज हैवी डैमेज टू द फॉरेस्ट। ओके, आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस कि जो जंगल में आग लगती है वो मतलब फॉरेस्ट के लिए सबसे डेंजरस है। A separate system should or a force of at national level should be created for dosing the forest, है ना। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक स्पेशल एक टीम हो जो इस पे वॉच रखे और इसको तुरंत ही कैसे काबू कर सकते हैं वो करें। वेल, अकॉर्डिंग टू मी देयर शुड बी सम ट्रेनिंग गिवन टू द लोकल पीपल, क्योंकि सबसे पहले वही लोग ही हेल्प कर सकते हैं। एंड उनको अगर फॉरेस्ट की आग बुझाना आ गया तो आई थिंक कभी आग लगती भी है तो इन डेट केस वो लोग इजीली उसको कंट्रोल कर लेंगे। जितना इनिशियली हम लोग कंट्रोल करेंगे उतना ही हम लोग अपने फॉरेस्ट को जलने से बचाएंगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट, ड्यू टू द increased means of transportation and easy travel of the thousands of pilgrim reach at religious place in forested area to attend the bhandaras, fairs, and or the parikrama circular path. At a time, the litter should be cleared properly. Otherwise, forests are polluted. See friends, अभी आई कैन अंडरस्टैंड हम लोग कभी कभी होली प्लेसेस पे जाते हैं ताकि मन की शांति मिले, बट एक चीज़ हमको नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोगों को कहीं पे भी जा रहे हैं तो इधर उधर कचरा ना फेंकें। अगर हम लोग पानी की बोतल पी रहे हैं, प्लास्टिक को इधर फेंक रहे हैं तो फिर वो एनवायरनमेंट में जाके पोल्यूट कर रही है। इट्स बेटर अपने पास रखो, जब कोई डस्टबिन दिखेगा तब उसमें डाल दो। ओके, और आजकल क्या हो रहा है कि जितना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है तो अब यूजुअली लोग मंदिरों की तरफ ज़्यादा विजिट करते हैं। और पहले तो पॉपुलेशन कम हुआ करती थी तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। और ये सब जितनी भी पिलग्रिमेज प्लेस हैं ये सब माउंटेनस एरिया पर है। एंड माउंटेनस एरियाज पे होने के कारण यूजुअली हम लोग अब सब बहुत सारा नाश्ता पैकेट वो सब ले जाते हैं एंड इवन पानी की बोटल्स भी कैरी करते हैं। सो वो फिर इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। दे आर गिवन द एग्जाम्पल भंडारा में क्या होता है कि यूजुअली प्रसाद सब भक्तों को खिलाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें वेस्ट भी की जाती हैं जो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। कई बार फेड्स होते हैं एंड कई बार सर्कुलर मोशन भी होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, द एरिया शुड बी डिमार्केटेड एंड रिजर्व फॉर एनिमल पेस्चर। अगर हम लोग एनिमल की पेस्चरिंग पे थोड़ा कंट्रोल करें और उनके पेस्चरिंग एरिया को अगर अच्छे से मार्क करके रखें तो हम लोग एनिमल्स के लिए ज़्यादा लंबे टाइम तक ग्रेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये था हमारा फर्स्ट पार्ट एंड आई होप आपको ये बहुत समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सी डेवलपमेंट के लिए इंसान ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। अर्ली टाइम से फॉरेस्ट ने उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। सी फॉरेस्ट किसको कहेंगे जहाँ पे यूजुअली नॉर्मली बहुत सारे ट्रीज होते हैं और वो भी बिना किसी इंसान के हेल्प के वो ग्रो हो जाते हैं। एंड इस टाइप की वेजिटेशन को हम लोग क्या कहेंगे, वर्जिन वेजिटेशन। बराबर, ऐसे जो बहुत सारे फॉरेस्ट हैं आजकल हिमालय, सुंदरवन और थार डिजर्ट में देखे गए हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। बराबर, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में हमने ये देखा था रिजर्व फॉरेस्ट जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हमने ये देखा था कि या तो अगर वो गांव है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एंड जो आसपास के जो सॉरी आई थिंक आई मिस जजिंग इट, मैं नीचे आ गया। एनी हाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये देखा है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। यहाँ पर किसी का भी लंबरिंग करना, कलेक्शन ऑफ वुड एंड पेस्चरिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में यूजुअली लोगों को थोड़ी मतलब लिबर्टी दी जाती है, दे कैन ग्रेज देयर एनिमल्स, इवन वो लकड़ियाँ भी कलेक्ट कर सकते हैं, बट देयर इज ओनली वन कंडीशन कि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। अनक्लासिफाइड यानी उसका हमने आज तक कभी ढूंढा ही नहीं है। ओके, एंड आई थिंक जो मैंने गलत से समझा दिया था। नाउ दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे स्टेट आते हैं जो यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एंड कम्युनिटी में यूजुअली ग्राम पंचायत आती है या फिर म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है आपकी। एंड प्राइवेट फॉरेस्ट यानी ये यूजुअली आपको यहाँ पे स्टेट्स के नाम तो याद रखना ही है, उड़ीसा, पंजाब, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। और इस टाइप की चीज़ें बहुत कम देखने में आई हैं और यूजुअली ज़मीन या तो बहुत ही फर्टाइल होगी या बिल्कुल बैरन होगी।
डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों का बर्बाद होना, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एंड इस टाइप का डिफॉरेस्टेशन ये हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। एंड इंसान इससे प्रोग्रेस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है और डिस्टर्ब भी कर रहा है। अब इसके जो परिणाम है, इसके जो इम्पैक्ट है डिफॉरेस्टेशन के, वो बहुत ज़्यादा है। एक तो जंगल में जैसे ही जंगल कम होते जा रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत सीवियर हो रहा है, इंटेंस हो रहा है। और दूसरी बात, एक तो सॉइल इरोजन के कारण भी मतलब बहुत सारे जंगलों का नुकसान हम देख रहे हैं। इसके अलावा इस एनिमल्स को भी अपना घर छोड़ना पड़ता है, कई बार वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं, ओके, खाने और पानी की तलाश में। एंड फाइनली यूजुअली वो आसपास के जो गांव के लोग होते हैं उनके एनिमल्स पे अटैक कर दिया करते हैं। फिर हमने रेमेडीज फॉर द कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि हमको वुड का रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए, ओके, ताकि हम लोग एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। हम अगर एक ट्री काट रहे हैं तो सेम स्पीसीज़ का और ट्री हमको ग्रो करना चाहिए, और एटलीस्ट जो ट्री फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है उसको तो बिल्कुल काटना ही नहीं चाहिए, उसको तो कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे हमने देखा था कि हम लोग रॉ मटेरियल के लिए जंगलों पे बहुत निर्भर हैं। तो अगर हम अपनी फ्यूचर नीड को समझते हुए साथ में पैरेलली अगर हम लोग फॉरेस्टेशन भी करें तो हम लोग अपनी फ्यूचर की नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। और जो इको टूरिज़्म होता है, इसको ये लोग ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसके अलावा आसपास के लोगों को अगर हम लोग पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू अगर उनको समझा पाएँ तो फॉरेस्ट का हम लोग बहुत सारा डैमेज होने से बचा सकते हैं। आफ्टर ऑल इन चीज़ों को अगर हम लोग स्कूल के या फिर कॉलेज के सिलेबस में इंक्लूड करें तो हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। फाइनली हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू हम लोग थोड़ा प्लानिंग करके एनवायरनमेंट के साथ अपना थोड़ा सा बॉन्डिंग बना के अपनी जो लकड़ियों की और जो फॉडर यानी घास चारे की जो डिमांड्स है वो फ्यूचर की फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा जंगलों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आग से, फॉरेस्ट फायर से। तो एक हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसी टीम बनाए जो हमेशा इस चीज़ को अलर्ट मोड में रहे। एंड जितना जल्दी अगर हम लोग फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करेंगे उतना ही हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे, उतना ही हम लोग अच्छा जी पाएंगे। और फाइनली ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या होता है कि पिलग्रिमेज प्लेस पे यूजुअली बहुत ज़्यादा लोग गंदगी करने लगे, कचरा करने लग गए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। सो हम लोगों को थोड़ा सा अब एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एंड लास्ट में एनिमल पेस्चरिंग के लिए अगर हमको ज़्यादा टाइम तक ज़मीन चाहिए तो हमको उसको थोड़ा सा मार्किंग करना पड़ेगा। एंड कुछ स्पेसिफिक दिन में यहाँ पे इस पार्ट में एनिमल्स नहीं चलेंगे तो नेचुरली ग्रास ग्रो होती रहेगी एंड हमारे एनिमल्स को भी डिमांड फुलफ़िल होती रहेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड वेट फॉर द सेकेंड पार्ट। ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, ओके। फिर इसके बाद हम लोग वाइल्ड लाइफ जो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाली है वो, अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है उसके हम लोग रीजन्स पढ़ेंगे। एंड ऑफकोर्स देयर आर फ्यू स्पेशल एनिमल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड how we are going to discuss the measure of preservation of the wildlife, okay. um, hope you guys are taking care of yourself. Bye, have a nice day and enjoy.